डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पोटेंशियोमीटर टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट हमने जो कल कुछ वी टेक सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अबाउट पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? एक्स इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला लिखा था ई पी अपॉन आर प्लस आर आर एच प्लस आर एस प्लस आर ए बी। और यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया था। मैंने बताया था आपको कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं देन इनमें से जो है वो तो हमें लेना है और जो नहीं है उसे उसकी वैल्यू क्या लेनी है? जीरो लेनी है। देन आर ए बी अपॉन एल, दिस इज आई इन द सर्किट आई, और आर ए बी अपॉन एल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। आप इसे चाहें तो क्या ले सकते हैं? ये वायर ए बी का टोटल रेजिस्टेंस है एंड दिस इज लेंथ ऑफ वायर ए बी, सो आर ए बी अपॉन एल बिकम्स द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने जो प्राइमरी सर्किट में जो सेल यूज किया ई पी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो ऑफ दैट सेल, देन वी टेक स्मॉल आर इज जीरो। अब मान लीजिए रियोस्टेट नहीं लगा हुआ है सर्किट में, हमने सभी सर्किट में रियोस्टेट लगाया है। वैसे जो भी एप्लीकेशन लिया हमने, we read 5 applications, 5 uses of potentiometer. In all application we use rheostat, but in any numerical rheostat is not given, then we take rheostat resistance is zero. So this formula is universal formula, we can say. Another formula of x is, if VAB is given, then we can write x equal to VAB upon L. If in any circuit only battery and resistance wire AB is given, there is no internal resistance of this cell, no rheostat, no series resistance, then this formula is simplified and becomes x equal to, this is EP and length is L, then this becomes EP upon L, because in this condition this and this becomes zero, then value of these three are zero, then RAB and RAB cancel out, then x equal to EP upon L. Okay, then we take a topic, standardization of a potentiometer. What is the meaning of standardization of a potentiometer? देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो हमने फर्स्ट 3 एप्लीकेशन से लिए थे, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, E1 equal to XL1, E2 equal to XL2, and when we find E1 upon E2, then X and X cancel out, L1 upon L2 in first application. Then we take second application, find the internal resistance of any cell. जो सेल E हमने लिया था इन सेकेंडरी सर्किट, उसका हमने क्या फाइंड किया था? इंटरनल रेजिस्टेंस। Then in this condition, when cell is in open circuit, then we take E equal to XL1, then closed circuit, then V equal to XL2, then we find R, and R is, we use this formula E minus V upon V multiply with R. When we put these values in this, then we got L1 minus L2 upon L2 into R. In this case also X and X cancel out. Then we take third application. आप देखिए नोट्स में, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड किया है R1, दैट इज L2 माइनस L1 अपॉन L2 L1 मल्टीप्लाई विद R. Then in this condition X and X also cancel out. So in these cases we don't use standard cell ES, but in calibration circuits, जो calibration के दो एप्लीकेशंस है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, वहां पर हमने स्टैंडर्ड सेल यूज किया है, बिकॉज वहां पर हमें x फाइंड करना पड़ेगा। तो x फाइंड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, potential gradient of any potentiometer by means of a standard cell is called standardization. तो standardization में हम क्या करते हैं? We take battery, primary circuit key and rheostat, and this is potentiometer wire. Here we use a standard cell. Standard cell, there are 2 examples of standard cell given in notes. One is Daniell cell
EMF of Daniel cell is 1.08 volt and another is cadmium cell 1.018 volt is the EMF of cadmium cell. Now this is galvanometer G and Jockey J. Let us assume when we touch this Jockey J on this wire AB, then balancing length comes at L node. So what is unknown potential? Unknown potential की जगह पर हमने लगाया है ES. ES equal to X multiply with L node. Then what is the X? X is ES upon L node. Here we know X and L node. So sorry, here we know ES and L node. So by this formula we can find X, potential gradient of potentiometer. This is called standard. This process is called standardization of potentiometer. Okay, now we take one another point, that is sensitivity. Sensitivity of potentiometer and the range of a potentiometer. Okay, sensitivity and range. Sensitivity and range of a potentiometer. देखिए sensitivity, this is our potentiometer, battery की rheostat and potentiometer wire A. Then what is the sensitivity? Sensitivity of potentiometer is depends on how much low potential that potentiometer can measure. जो पोटेंशियोमीटर एक छोटे से छोटे पोटेंशियल को मेजर कर सकता है वो क्या होगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होगा. ज्वेलर्स का जो तराजू होगा, जो मास को मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट होता है, तराजू जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा कंपेरेटिव टू द किराने की दुकान पर जो तराजू होती है उसके कंपेरिजन में. बिकॉज जो ज्वेलर्स के पास जो होता है वो मिलीग्राम को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होता है. अब जितनी आपको यहाँ इतना ध्यान दीजिए, आपको जितना आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है उतना ही आपको x का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. x इज लेस, सेंसिटिविटी इज मोर. अब x की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है तो आप x डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. और सेकंड मेथड है, आप जानते हैं व्हाट इज x? x इज VAB अपॉन L एंड x इज व्हाट इज VAB? VAB I into RAB अपॉन L. दूसरा मेथड है, आप I को क्या करें, कम डिक्रीज करें. प्राइमरी सर्किट में करंट को क्या करें, आप डिक्रीज करें. तो प्राइमरी सर्किट में करंट का फॉर्मूला बताया था हमने, व्हाट इज फॉर्मूला? EP अपॉन ऑल रेजिस्टेंसेस व्हिच आर पॉसिबल इन द सर्किट, RH प्लस RS प्लस RAB. सो इफ वी इंक्रीज, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है तो सेल का आएगा, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे. सो इफ we want to decrease current in the circuit, then we increase rheostat resistance, we join a high series resistance in the circuit and we use high resistance potentiometer wire. उससे क्या होगा, I का वैल्यू कम हो जाएगा. I का वैल्यू कम हो जाएगा तो X की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो what is the right two factors on which sensitivity depends? Length of wire. How we can increase sensitivity? We increase the length of wire. Okay, and by increasing the rheostat resistance, by increasing the RS, by increasing the RAB, इन सबको इंक्रीज करके आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर. देखिए आपका पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम जितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल व्हिच कैन बी मेजर बाय द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड रेंज. द रेंज मैक्सिमम पोटेंशियल कितने मेजर कर सकता है?
जितना ए और बी के बीच में पॉसिबल होगा पोटेंशियल, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो आप देखिए जितना, अब अगर किसी पोटेंशियोमीटर का x इज 1 वोल्ट पर मीटर और उसका लेंथ 10 मीटर है तो वो मैक्सिमम कितना मेजर कर पाएगा, 10 वोल्ट। अगर उसका x 2 वोल्ट पर मीटर है तो वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 मीटर पर 2 वोल्ट है तो 10 मीटर पर कितना आ जाएगा बताइए, 20 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। अगर उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 3 वोल्ट पर मीटर है तो वो कितना मेजर कर सकता है, 30 वोल्ट मेजर कर सकता है। तो जितना x की वैल्यू इंक्रीज होगी उसका रेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप जानते हैं अगर मान लीजिए इसके बीच में पोटेंशियल 10 वोल्ट है और हम यहाँ पर 12 वोल्ट लगा देंगे तो हमें कभी भी बैलेंसिंग कंडीशन नहीं मिलेगी। बैलेंसिंग कंडीशन तभी मिलेगी देन व्हेन VAB इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू VXY। VAB की जो वैल्यू है वो VXY से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मींस अननोन पोटेंशियल जो है वो हमेशा, ये VXY जो है वो VAB से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी तो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट रेंज की अगर बात करेंगे आप, रेंज जो होगा वो x के क्या होगा, रेंज इज प्रोपोर्शनल टू x होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लास्ट टॉपिक चल रहा था पोटेंशियोमीटर, ये हमारे कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम आज सेंसिटिविटी और रेंज, ये दो छोटी छोटी बातें और नोट कर लेंगे, बाई चांस इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।